प्रोफेसर हाँ सर। अन हाँ, शुरू कर दिया मैंने। हाँ, जी। नमस्कार। अ, राजनीति विज्ञान विभाग के वेज पेज पर आयोजित इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज हमारे बीच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय की विदुषी प्रोफेसर अनुपम शर्मा, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग एवं मानव अधिकार विभाग, अमरकंठ मध्य प्रदेश, हमारे बीच उपस्थित हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपका स्वागत है मैडम। आज हमारे साथ हमारे विभाग के सीनियर प्रोफेसर हिमांशु बौड़ाई, डायरेक्टर विमेन स्टडी सेंटर, भी उपस्थित हैं। और आप सबके अनुरोध पे, जो हमारे इस वेब पेज से हमसे संबद्ध हैं, आप सबके अनुरोध पे हमने ये एक लंबे अंतराल के बाद इस श्रृंखला को फिर शुरू कर दिया है। इससे पूर्व हमारे पेज पे प्रोफेसर अग्निहोत्री साहब, जो कि वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के, उनका व्याख्यान हुआ था। उसके बाद आज प्रोफेसर अनुपम मिश्रा जी का व्याख्यान होगा। मैडम ने हमें समय निकाला, अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया। मैडम, हम आपके आभारी हैं और मैं अपने विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे जो सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं प्रोफेसर हिमांशु बौड़ाई से अनुरोध करूंगा कि वे प्रोफेसर अनुपम शर्मा का औपचारिक स्वागत करें, उनका इंट्रोडक्शन दें। प्रोफेसर हिमांशु बौड़ाई। Thank you, Professor Sripal. On the behalf of HMB Gadwal University and the Department of Political Science, Madam, I welcome you on the occasion when we are going to discuss a very, very important topic today. As far as Dr. Sharma, Anupam Sharma, your introduction in the field of political science is just like a formality because most of the people in the field of political science know you very well. Though it's a formality, and I would like to introduce such a personality uh, to my students, my teachers, Dr. Chirimati Anupam Sharma, at present a professor and head in the Department of Political Science and Human Rights in ID National Tribal University, Amarkantak, Madhya Pradesh. She has 22 years of experience in the university and as well as SCRT, Lucknow. She is well known because just I said, she awarded Pandit Govind Ballabh Pant National Award 2 times. First in 2007 for her book Cybercrime, and second 2013 for her book Women, Police and Expectations by the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India. Congratulations, ma'am. IFSA National Youth Political Science Award was given her in the year 2013. Not only this, but international visit fellowships, which she has already, I think, completed. In UNESCO Fellowship, International University of Japan in 2013, Central European University, Budapest, Hungary in 2011, Kamsky University, Bangkok, Thailand in 2010. She is also invited so many countries and she delivered so many talks. And here, I think more than 22 talks she has delivered on international and national level.
She has written 14 books, and these books are reference books, textbooks, and editing books. She has published 40 papers in national and international journals, and 12 chapters she has written in different books. She has completed 4 major projects also, and 5 research scholars have done work with her. Apart from this, she is well-known administrator, and I think in university she was worked as a very successful administrator almost all the courses. So such a great personality, such a dignified personality in the field of political science is with us. Really, madam, we are very, very happy. And once again, core of my heart, I welcome you and request you, please deliver your lecture, which is very important from political science point of view and our students and teachers point of view also. Thank you, madam. थैंक यू मैडम। आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी को शुभ संध्या। आज के इस कार्यक्रम के आज के इस फेसबुक कार्यक्रम में हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोटियाल जी, राजनीति विज्ञान विभाग की सम्माननीय प्रोफेसर वरिष्ठ प्रोफेसर हिमांशु बोराय जी, आदरणीय प्रोफेसर DS सूद जी, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट MM RN गरोला जी, प्रोफेसर राकेश काला जी, प्रोफेसर MS नेगी जी। विश्वविद्यालय के लाइव फेसबुक से जुड़ने के लिए मैं कार्यक्रम के आयोजक जो लंबे समय से इस श्रृंखला को चला रहे हैं, मैं उनसे प्रोफेसर MM सेमवाल जी की आभारी हूं, जो मेरे वरिष्ठ साथी हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और जो निरंतर राजनीति विज्ञान के अकादमिक जगत में जो कार्यक्रम होते रहते हैं उनमें सदैव अपनी सक्रिय भूमिका उपस्थिति बनाए रखते हैं और वह विषय को निरंतर गत्यात्मकता प्रदान करते हैं, संबलता प्रदान करते हैं और विषय को समृद्ध बनाते हैं। उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। FB लाइव से जुड़ना आज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्तमान में हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का नेतृत्व माननीय कुलपति के द्वारा जो किया जा रहा है, पहला महत्वपूर्ण बिंदु कि मैडम उसी राजनीति विज्ञान विभाग में वरिष्ठ आचार्य के पद पर कार्यरत रही हैं और वर्तमान में वह विश्वविद्यालय को नेतृत्व भी प्रदान कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय कि मैडम जो कुलपति हैं वो राजनीति विज्ञान विषय की एक बहुत ही प्रकांड पंडित अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है और जो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ख्याति लब्ध हैं। मुझे इसलिए इससे जुड़ने में अपने आप को मैं और भी सम्मानित महसूस कर रही हूं। विभाग के जो वरिष्ठ आचार्यगण हैं, जो लंबे समय से इस राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं, उनको मुझे समय समय पर सुनने का, उनसे वार्तालाप करने का, विषय के विभिन्न बिंदुओं पर, शोध के विभिन्न बिंदुओं पर निरंतरता बनी रहती है, बातचीत होती रहती है और उनसे मैं सदैव लाभान्वित होती रहती हूँ और विषय की नई नई गहराइयों को उनके साथ बैठकर, उनके साथ बात करके, उनको सुनकर हमेशा विषय की नई नई चीजों को विश्लेषण करने का मुझे अवसर मिलता रहता है। जो राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष हैं
और मेरे बहुत वरिष्ठ हैं प्रोफेसर MM सेमवाल जी। जब उनका आदेश हुआ कि मुझे इस विषय पर बात करनी है, इस विषय पर बोलना है, तो मेरे लिए बहुत असमंजस्य की स्थिति थी और बहुत एक चुनौती भी थी। वह इसलिए जो माननीय कुलपति हैं, उनके द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा है, वो स्वयं विषय में इतनी उपलब्धियां हासिल किए हुए हैं, विषय में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। और दूसरी चीज जो मैं इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम से अब से पहले से भी मैं जुड़ी रही हूँ और उसे जुड़ने के पश्चात मैं देखती भी रही हूँ कि और अभी-अभी जो प्रोफेसर आदरणीय MM सेमवाल जी ने भी बताया कि इस कार्यक्रम के तहत वह विभिन्न विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति जो हैं उनके भी व्याख्यान करा चुके हैं। सर निश्चित रूप से उनके व्याख्यान जो या वो अपने क्षेत्र में बहुत ही महारत हासिल रखते हैं और विशेषकर कुछ कुलपति जो हमारे ही विषय के हैं, जिन्होंने विषय के विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करके इस जो फेसबुक लाइव कार्यक्रम है उसको और अधिक हम कहें सबलता प्रदान की है, महत्वपूर्ण बना दिया है। तो इन सब के उपरांत जब मुझे ये आदेश मिला कि मुझे बोलना है, तो मेरे लिए बहुत ही असमंजस्य की स्थिति बनी रही कि मैं किस प्रकार से अपनी बात को रखूंगी, क्योंकि इन्हीं सब जो मेरे वरिष्ठ हैं, इन्हीं के साथ रहते हुए, कुछ की कक्षाओं में पढ़ते हुए, कुछ के साथ रहते हुए, कुछ के साथ अकादमिक कार्यक्रमों में मैंने भाग लेते हुए बहुत सारी चीजों को सीखा है। तो उन सीखी हुई चीजों को आज कर मैं समेट कर इस विषय के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से मैं आज अपना जो भारतीय राजनीति में उभरती प्रवृत्तियां हैं उस पर कुछ बिंदु रखूंगी। मैं कार्यक्रम के आयोजक MM सेमवाल जी को आभार प्रकट करती हूं। उन्होंने मुझे अपने फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आमंत्रित करके मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया है। और इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जो विद्वत जन जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थियों का समूह जुड़ा हुआ है, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूं कि वो इस तरीके के कार्यक्रमों से, जहां पर कि हम वर्तमान में आमने सामने बैठकर इस तरीके के कार्यक्रम नहीं करा सकते, इस आभासीय माध्यम से हम इस तरीके के कार्यक्रम जो राजनीति विज्ञान विभाग है विश्वविद्यालय का वो करा रहा है, उससे लाभान्वित होंगे। आज का विषय है भारतीय राजनीति में उभरती प्रवृत्तियां। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था उस देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और उसके साथ साथ जो अन्य पहलू हैं उनमें उनसे उसकी एक शेप मिलती है, वह आकार लेती है। भारत में भी जिस राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ है, उसका विकास हुआ है, उसमें मैं पल्लवित एवं पुष्पित हो रही है, वह भी वही जो हमारे भारतीय समाज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विशेषताएं रही हैं। और इसी के साथ साथ जो दूसरे समूह के रूप में राजनीतिक दलों के माध्यम से है, हित समूह के माध्यम से है और दूसरे माध्यमों से जो जिस विशेषताओं के तहत हमारी राजनीतिक व्यवस्था निरंतर आगे बढ़ रही है, वह उन्हीं विशेषताओं का परिणाम है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जिस संविधान को निर्माण किया गया, संविधान निर्माताओं के द्वारा दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जो प्रावधान संविधान में किए गए और उसी के साथ साथ जो संविधान की प्रस्तावना में संविधान की मूल भावना को रखा गया है, जिसके तहत भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाकर सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए, आर्थिक न्याय प्रदान करते हुए किस तरीके से भारत की संप्रभुता बनी रहेगी, उसे कैसे बनाए रखा जाएगा, इन सभी राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनको स्थान प्रदान किया गया है। उन संस्थाओं को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए और उन पर उनको और गत्यात्मक बनाए रखने के लिए जो विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, वे निश्चित रूप से हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी दूरदर्शिता को दर्शाते हैं कि आगे आने वाले समय में भारत के समक्ष किस किस प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं, किस प्रकार का
परिदृश्य भारत में रहेगा, उसको उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से हमारे संविधान में उन प्रावधानों को रखा है। इसी का परिणाम है कि जो भारतीय संविधान है वह अन्य देशों के संविधानों की तुलना में बहुत विस्तृत हो जाता है। भारत में जनसंख्या एवं उसके भौगोलिक विस्तार को देखते हुए संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जहां पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का संविधान के माध्यम से विभाजन किया गया है। अर्थात दोनों ही स्तर पर सरकारें संविधान से अपनी शक्तियां ग्रहण करती हैं और उसी के माध्यम से उन शक्तियों का प्रयोग करती हैं। संविधान के द्वारा भारत में एक ऐसी मजबूत केंद्र व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके तहत जो व्यवस्था है उसमें केंद्र की मजबूत स्थिति है और राज्यों की उसकी तुलना में जो शक्तियां हैं वह सीमित हैं, लेकिन उसके बीच बेहतर तालमेल बिठाते हुए संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। भारत में अगर राजनीति को वर्तमान में जो इसकी उभरती हुई प्रवृत्तियां हैं उनको हमें स्वतंत्रता के पश्चात में जो परिदृश्य बना है या बनता चला रहा था उसके संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात अगर हम लगभग 2 दशकों के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें या राजनीतिक प्रवृत्तियों की बात करें तो ये वह समय है जब एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रभुत्व भारत में बना रहा। ये एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रभुत्व रहा, एक दलीय व्यवस्था से जो यह भिन्न है। यद्यपि और क्षेत्रीय दल भी उस समय पर उपस्थित थे, लेकिन जो प्रभाव में थी या जिसका प्रभुत्व था वह कांग्रेस दल था, जो राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर अपनी जो है वह प्रभुत्व बनाए हुए था। अर्थात केंद्र एवं राज्यों में कांग्रेस के द्वारा ही सरकारों का गठन किया जा रहा था और उनके द्वारा ही सरकारों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा था। इसी के साथ साथ उस समय का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनका भी व्यक्तित्व ऐसा था कि वो जहां पर लोगों को अपने तरफ स्वयं आकृष्ट कर लेते थे और केंद्र एवं राज्य के मध्य अगर इस तरह की कभी तनाव की स्थिति या राजनीति में कोई इस तरीके के संघर्ष की स्थिति आती थी तो उनके द्वारा उसको बहुत सरलता के साथ उसका समाधान कर लिया जाता था, क्योंकि उसका एक और कारण था कि दोनों ही जगह पर एक ही दल की सरकार होना। तो यह जो प्रवृत्ति थी यह भारत में लगभग 2 दशक तक हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसके पश्चात 1967 के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित होता है, जो राजनीति की प्रवृत्तियों में परिवर्तन आता है वह है कि क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दलों का विकास। यद्यपि उनका उद्भव भी हो रहा था, लेकिन पिछले 20 वर्षों में भी वह अपने अपने क्षेत्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। लेकिन ये समय ऐसा था जब ये चुनाव हुए तो इस समय पर जहां पर कांग्रेस पार्टी का जो एकाधिकार था वह डिक्लाइन हुआ, उसमें ह्रास हुआ। वहीं पर जो आधे से अधिक राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों के द्वारा सरकारों का गठन किया गया। अर्थात क्षेत्रीय स्तर पर लोगों ने अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो जिनके माध्यम से वो प्राप्त करना चाह रहे थे उनके माध्यम से उन्होंने उन क्षेत्रीय दलों को चुनकर भेजा और वो क्षेत्रीय दलों ने राज्य स्तर पर अपनी सरकारों का गठन किया। इन गठन का उद्देश्य जहां पर कांग्रेस को जो कि लंबे समय से लगभग 2 दशकों से राजनीति में केंद्र एवं राज्यों की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हुए थी, जहां उसे सत्ता से बाहर रखना था, वहीं उसके साथ साथ सत्ता में अपनी भागीदारी भी बनाना था। क्योंकि लंबे समय तक क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने के बाद इन दलों के द्वारा ये महसूस किया जा रहा था कि यदि उन्हें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है, उन्हें हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो उसके लिए उन्हें सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। और इस भागीदारी के लिए ही जो इन गठबंधन सरकारों का गठन हुआ, उन्होंने इन क्षेत्रीय दलों को ये अवसर, ये
अवसर प्रदान किया कि वह इन सरकारों के माध्यम से जो क्षेत्रीय स्तर पर लोगों की आवश्यकताएं हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उनको यह पूरा कर सकते हैं। इसी समय में, इसी दशक में जो 1977 में प्रथम बार जो गैर कांग्रेसी दल के एक सरकार का गठन हुआ था, वह भी गठबंधन की ही सरकार थी। अर्थात जो अभी तक किन राज्यों में कांग्रेस की सरकार का सिमटाव हो रहा था, वह अब केंद्रीय स्तर तक आ चुकी थी। और ऐसी स्थिति में 1977 में जो गैर कांग्रेसी दलों का उदय हो रहा था राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर, वहां पर उसी का परिणाम था कि अब राष्ट्रीय स्तर पर गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया। इसका एक और भी परिणाम के स्वरूप ये उदय हुआ था, वह था जो भारत में आपातकाल लागू किया गया था। वहां पर जो उसके पश्चात इलेक्शन हुए थे, उसमें जनता के द्वारा कांग्रेस पार्टी को अस्वीकार कर दिया गया था, या वह जो उसे महत्वपूर्ण सफलता मिल रही थी, उसको नकार दिया गया था। इसके पश्चात जो भारतीय राजनीति का 80 का दशक आरंभ होता है, उस दशक में हमें और भिन्न प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में गत्यात्मकता बनी रहती है। भारतीय राजनीति की भी ये विशेषता रही है कि स्वतंत्रता के पश्चात से इसमें हमें निरंतरता, गत्यात्मकता, आगे बढ़ने का एक विचार निरंतर दिखता है। यह जो प्रवृत्ति है परिवर्तनशील रही है। इसी का परिणाम था कि जो 80 का दशक है, यह एक ऐसा दशक है जहां पर कांग्रेस युग की समाप्ति है और क्षेत्रीय दलों का उदय है। जो उदय 67 में राज्य स्तर पर था, वह केंद्रीय स्तर पर भी आ रहा था और वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इसी के साथ भारत की राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसने राष्ट्रीय एवं राज्यों की राजनीति को प्रभावित किया। और उसी के साथ साथ जहां वैश्विक पटल पर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का दौर था, जो एलपीजी का दौर था, उसने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ा और भारत में सरकार के द्वारा आर्थिक सुधारों के ऊपर बल दिया गया और उनको स्वीकार किया गया। ये नए आर्थिक सुधारों ने भारत के जो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास की गति थी, उसको तीव्रता प्रदान की और एक नए युग का यहां से आरंभ होता है। जो गठबंधन की सरकारों का दौर है, वह भी निरंतर चल रहा था, क्योंकि 1989 से और लगभग ना हम देखें जो 1990 तक का काल है, वह केंद्रीय स्तर पर अस्थिर सरकारों का काल है, जहां पर सरकारें बहुत कम समय तक चल पाई थी और जो चुनाव थे वो भी निर्धारित समय से पूर्व ही हो रहे थे। तो ये जो गठबंधन सरकार का परिणाम था, ये सरकारों की अस्थिरता में और उनके समय से पूर्व गिरने में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। यही वह समय है भारतीय राजनीति में जहां पर की जो दूसरी बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, वह भी धीरे धीरे अपना राजनीतिक विस्तार कर रही थी। उसकी विचारधारा भी धीरे धीरे विस्तृत होती जा रही थी और लोगों के द्वारा उसको स्वीकार किया जा रहा था। तो अगर 1990 के दशक की बात करें, तो यह वह दशक है जब जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो केंद्रीय स्तर पर भी दिखलाई देती है और वो राज्य स्तर पर भी दिखलाई देती है। अर्थात 4 प्रकार की राजनीतिक दलीय व्यवस्था जो उभर कर आई, वो है इसमें प्रमुख रूप से। पहली राजनीतिक दलीय व्यवस्था जहां पर की कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक उस समूह को नेतृत्व दिया जा रहा था, जहां पर कांग्रेस पार्टी स्वयं सरकार बना रही थी या उसके साथ अन्य दल मिले हुए थे। दूसरा समूह वह था जहां पर की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वयं या अन्य दलों के द्वारा सहयोग से मिलकर राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था। तीसरे समूह में वो थे जो दक्षिणपंथी दल थे, जो कुछ विशेष राज्यों में अपनी सफलता बनाए हुए थे और
वहां पर कार्य कर रहे थे। जो एक चौथा ग्रुप है, यह वह समूह था जिसमें कि जो राज्य स्तर पर जो विभिन्न वर्ग उभर कर आ रहे थे, ये विभिन्न वर्ग ऐसे थे, विभिन्न दल ऐसे थे जो अपने दलों को उस राज्य में लोगों के मध्य जहां पर पॉपुलर बना रहे थे, अपनी विचारधारा का प्रचार एवं प्रसार कर रहे थे, वहां पर सत्ता भी प्राप्त कर रहे थे। कहीं कहीं पर इन राजनीतिक दलों के द्वारा स्वयं के द्वारा सत्ता प्राप्त की गई और कहीं पर दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर इनके द्वारा सरकारों का गठन करके राज्यों को नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है वह राज्यों में स्पष्ट रूप से देखी जा रही थी और केंद्र में भी यही एक अस्थिरता का दौर निरंतर बना हुआ था। यद्यपि भारतीय राजनीति में जो ये व्यवस्था थी, गठबंधन की राजनीति थी या जो इस समय की विशेषताएं थी, उसमें बहुत सारे मुद्दों पर राजनीतिक व्यवस्था में असहमति का दौर था। लेकिन उसके बावजूद भी जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक मजबूती है या जो उसे एक अलग विशिष्ट स्थान प्रदान करती है, वह है कि असहमति के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर सहमति होना। जो राष्ट्रीय मुद्दे थे जिसमें प्रमुख रूप से था कि जो 1990 में सरकार के द्वारा जो नवीन आर्थिक सुधारों को स्वीकार किया गया था, उन्हें लागू किया गया था, उन्हें लगभग सभी दलों के द्वारा स्वीकार करते हुए उन्हें अपने अपने राज्यों में भी और केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय स्तर पर इस जो कदम थे उन्हें उठाकर उनको लागू किया जा रहा था। पिछड़े वर्गों के लिए जो उनके विकास के लिए सभी राजनीतिक दलों के द्वारा सामूहिक रूप से प्रसार किया जा रहा था कि जो उनकी राजनीतिक रूप से या जो उनकी सामाजिक रूप से जो उनकी मांगे थी, उन मांगों पर या जो उनकी न्याय की अवधारणा थी कि किस तरीके से उनको न्याय प्रदान किया जाए, उसको लेकर भी वहां पर निरंतर सभी के द्वारा एक साथ मिलकर कार्य किया जा रहा था। देश में जो स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय दल थे, उनकी भूमिका को भी अब सभी दलों के द्वारा स्वीकार किया जा चुका था। अर्थात जिन भी सरकारों का गठन हो रहा था, उन सरकारों के गठन में क्षेत्रीय स्तर पर तो यद्यपि वह अपनी उपस्थिति, अपना महत्व पहले ही दर्ज करा चुके थे, लेकिन इन दशकों में महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वह थी कि अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक स्तर पर भी यह स्वीकार कर लिया गया था या इस तथ्य को अब बड़ी पार्टियों के द्वारा स्वीकार किया जा चुका था कि इन दलों के बिना राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों का गठन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो जनाधार मिल रहा था केंद्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों को, वह जनाधार बहुत खंडित था। अर्थात कोई भी राजनीतिक दल उस बहुमत को नहीं प्राप्त कर पा रहा था जो कि सरकार बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो यह जो दौर है ये ऐसा है कि जहां पर अब सभी क्षेत्रीय दल विचारधाराओं को से कंप्रोमाइज करते हुए या विचारधाराओं को अलग रखते हुए वह सरकार बनाने में और जो उनके द्वारा उद्देश्य रखे जा रहे थे या उनके द्वारा मैनिफेस्टो में जो जनता से वादे किए जा रहे थे, उनके माध्यम से वो उन्हें पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। तो यह जो भारतीय राजनीति की विशेषता रही है, यह जहां पर असहमति है, जहां पर संघर्ष है, लेकिन वहां पर राष्ट्रीय मुद्दों के विषय पर और या जो जनता के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर सहमति भी स्पष्ट रूप से देखी जाती है। इस दौर में जो सरकारें बनी वो केंद्रीय स्तर की सरकारें थी या राज्य स्तर की सरकारें थी, उनमें सरकारों का जो प्रमुख एजेंडा था, उनमें प्रमुख एजेंडा में था कि किसी भी तरीके से जो राजनीति है उसमें अपना सत्ता प्राप्त करना। उसके लिए जो प्रमुख मुद्दे बने हुए थे चुनाव में या चुनाव के पश्चात भी, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, भाषा, ये ऐसे मुद्दे थे जो राजनीति में प्रमुखता प्राप्त किए हुए थे। चुनावों का लड़ा जाना, उम्मीदवारों का निर्धारण, मंत्री पद प्रदान किया जाना, इन सब के पीछे ये सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हो रहे थे। और अगर हम कहें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की जो एक प्रवृत्ति थी वह इन मुद्दों के आसपास स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार रूप प्रदान करने के लिए भी सभी राजनीतिक दल और सभी सरकारें अपने अपने स्तरों पर प्रयास कर रही
थी और उसी का परिणाम था कि इन वर्गों को जो किन्हीं कारणों से अब तक वंचित थे, पिछड़े थे, सरकारों के प्रयासों से, गैर सरकारी संगठनों के, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से उनको न्याय प्रदान किया जा रहा था। विकास और सुशासन, जहां पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में या अंतरराष्ट्रीय फलक पर ये महत्वपूर्ण अवधारणाएं अपना स्थान बना चुकी थी, भारत में राजनीति में उसका अभाव देखा जा रहा था, क्योंकि राजनीति का जो आधार था वह आधार मुख्य रूप से जो जाति, सामाजिक न्याय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण या सार्वजनिक क्षेत्रों पर का सिमटाव, ये प्रमुख मुद्दे बन रहे थे। तो जो विकास का मुद्दा था या सुशासन का मुद्दा था वह उससे कहीं पीछे रह रहा था। तो सरकार इन प्रमुख एजेंडा के ऊपर कार्य कर रही थी। यह वही काल था फिर जहां पर की गठबंधन सरकारें बन रही थी। गठबंधन सरकारें अब भारतीय राजनीति की हम कहें कार्य विशेषता बन गई थी, राज्य स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर भी। कांग्रेस जहां सिमट रही थी राज्यों में और केंद्रों में, वहां दूसरे दल यद्यपि सरकार जनता के मध्य अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, नए नए मुद्दों को लेकर जा रहे थे, लेकिन उनको बहुमत ना मिलने के कारण या जनाधार जो है वो खंडित होने के कारण, बहुमत ना मिलने के कारण वो सरकारें जो हैं ये बहुमत के आधार पर नहीं बन पा रही थी। वो गठबंधन सरकारों का योग ही चल रहा था। इन्हीं गठबंधन सरकारों का जो परिणाम रहा वह था कि अस्थिरता का काल। अस्थिरता होने के कारण या हमेशा एक यह भय बना रहने के कारण कि सरकारें कब तक चलेंगी, कब कोई पार्टी अपना समर्थन वापस कर लेगी। क्योंकि भारत में जो गठबंधन सरकारें बनी थी उसमें दो तरीके के अलायंसेस हुए थे। एक वो अलायंस थे जो इलेक्शन से पूर्व हुए थे, जिन्हें हम प्री पोल अलायंसेस कहते हैं, पोस्ट पोल अलायंसेस है। तो जो प्री पोल हो रहे थे उनमें जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो एक साथ आ रहे थे, जनता के मध्य जा रहे थे। तो उनमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो उन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन्होंने जनता से किए थे, उनको प्राप्त करने के लिए वो एक साथ बने थे। लेकिन दूसरी तरफ जो चुनाव के पश्चात इस तरीके के गठबंधन किए जा रहे थे, उनका प्रमुख उद्देश्य था कि किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त करना। सत्ता प्राप्ति जहां पर प्रमुख उद्देश्य था तो वहां पर अस्थिरता भी स्पष्ट रूप से देखी जाती थी कि जिस भी राजनीतिक दल का उद्देश्य पूरा नहीं होता था या उसमें जो सत्ता के द्वारा उसकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता था, तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि वहां पर अस्थिरता का दौर चलता रहता था और सरकारें इसलिए केंद्रीय स्तर पर हमेशा और राज्य स्तर पर भी अस्थिरता बनी रही थी। इसी का परिणाम हुआ कि जो परिवर्तनकारी शासन का अभाव देखा गया, क्योंकि किसी भी सरकार को जो नीतियां बनाती है, जो लागू करती है, उसे लागू करने के लिए एक निश्चित समय चाहिए जिससे कि वो उन्हें लागू कर सके। जिन उद्देश्यों को, जिन अपेक्षाओं को, जिन घोषणाओं को वो जनता के मध्य कर आती है, जिन्हें वो प्राप्त करना चाहती है, लेकिन अस्थिरता के कारण ये परिवर्तनकारी जो कदम उठाए जाने थे, इस समय पर उसका स्पष्ट रूप से अभाव देखा जा सकता था। इसके पश्चात की जो भारत में पिछले दशक, शताब्दी के जो अंतिम दशक हम कहें या अब जो 2 दशक रहे हैं, अगर उस राजनीति को, उस उभरती हुई प्रवृत्ति पर हम की बात करें तो एक जो विशेषता हमें दिखलाई देती है वह है कार्यपालिका का एक रूपता का अभाव। क्योंकि जैसे जैसे गठबंधन सरकारें बन रही हैं उसमें वो एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी का अभाव दिखलाई देता है कि एक ही दल के जो सदस्य हैं वही कार्यपालिका में स्थान पर प्राप्त करेंगे। बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण और गठबंधन सरकार होने के कारण कार्यपालिका में विभिन्न दलों को उनका स्थान प्रदान करने के लिए जो कार्यपालिका है वो इस तरीके की हैं, जो विभिन्न दलों के जो सदस्य चुनकर आए हैं उनके मिलाकर उनका गठन किया गया है। इसी का परिणाम है
कि जो मुद्दों को लेकर या जो वो जनता के में वादे कर कर आते हैं, उनके कारण इसमें एक कभी-कभी संघर्ष की स्थिति भी कार्यपालिका के अंदर देखी जाती है। भारत में इसे स्पष्ट रूप से केंद्र एवं राज्यों की राजनीति के विश्लेषण के पश्चात इसे महसूस किया जा सकता है। यह एक ऐसा दौर है जिसमें अवसरवादिता रही, क्योंकि जब कोई पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी में नहीं आ पाती है और उसे सत्ता प्राप्त करना उसका उद्देश्य बन जाता है, तो वह किसी भी साम दाम दंड भेद के आधार पर वह सत्ता प्राप्त करना चाहती है। भारतीय राजनीति की यह विशेषता रही कि उन दलों ने सत्ता प्राप्ति के लिए, और चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनकर आ रहे थे, सत्ता प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत आसानी से जो जिस दल से वो थे उन दल के साथ अपने निष्ठा को परिवर्तित करते हुए दूसरे दलों में वो शामिल होते चले गए, और उसी का जो परिणाम था वह था भारत में दल बदल की राजनीति। जो ये दल बदल की राजनीति का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, इसने भारतीय राजनीति में एक नकारात्मक अवधारणा को विकसित किया कि जहां पर लोकतांत्रिक मूल्य जिनके स्थापित करने की बात भारतीय संविधान में की गई थी, या लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उसकी भी यह मांग है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करे, उनको पल्लवित करे, उनको आगे बढ़ाए। उसका हमें इस समय पर जो है वह डिक्लाइन दिखता है कि वो मूल्य कहीं पीछे हो रहे थे, और इन दल बदल के कारण लोग दूसरी पार्टियों में बहुत आसानी से जा रहे थे। अर्थात कुछ इलेक्शन के दौरान और या कुछ राजनीतिक दलों का विश्लेषण करते हैं तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि चुनाव लड़ने से पूर्व जहां पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए दिखलाई देते हैं, उनकी आलोचना करते हुए दिखलाई देते हैं, वहीं पर चुनाव के पश्चात वह एक ही उसी सरकार का अंग बनकर एक साथ मिलकर काम करते हैं। अर्थात विचारधाराएं पीछे छूट जा रही हैं और राजनीतिक अवसरवादिता आगे बढ़ रही है, जिसका परिणाम भारतीय राजनीति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और ये जो राजनीति चली है, ये समझौते की राजनीति है, ये विचारधारा विहीन राजनीति है, क्योंकि हर राजनीतिक दल की एक विचारधारा होती है, जिस विचारधारा के आधार पर उसका गठन होता है और उसी आधारों को लेकर वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन भारतीय राजनीति की जो परिस्थितियां रही, उनमें जो प्रवृत्ति उभर कर आई, तो उसमें सत्ता प्राप्ति जब प्रमुख उद्देश्य हुआ या दूसरे दल को सत्ता से बाहर रखना उद्देश्य हो गया, तो वहां पर एक विचारधारा के आधार पर जो राजनीति थी उसको छोड़कर जो कंप्रोमाइज की राजनीति थी उसको राजनीतिक दलों के द्वारा या राजनीतिक जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनके द्वारा स्वीकार करते हुए उस अवसरवादिता को बढ़ावा निरंतर दिया जा रहा था। जो केंद्र और राज्यों के संबंध थे वह जहां प्रथम 2 दशकों में बहुत हम कहें कुछ हद तक सामान्य थे और बेहतर बने हुए थे, परंतु जैसे ही राज्य एवं केंद्र स्तर पर गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ और गैर जो कांग्रेसी दलों की सरकारें राज्य में बनी या जो जिन राजनीतिक दलों की सरकारें राज्यों में थी उनसे दूसरी दल की सरकार केंद्र पर में बनी, तो उन दोनों के मध्य बहुत बीच बीच में हम देखते हैं कि संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। वो संघर्ष की स्थिति राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर या जो राष्ट्रपति शासन है उसको लेकर, आर्थिक सहायता प्रदान करने को लेकर, जो और इसी के साथ साथ राज्यों के द्वारा जो और मांगे की जाती थी उनको लेकर एक निरंतरता हम देखते हैं कि वो एक संघर्ष या तनाव की स्थिति भी भारतीय राजनीति में केंद्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। यही वह समय है जहां पर क्षेत्रवाद को भी बढ़ावा मिला। क्षेत्रवाद के आधार पर राज्यों के द्वारा जहां पर और अधिक स्वायत्तता की मांग की गई, अपनी भाषा को लेकर अपने जो उनके क्षेत्र विशेष की मांगे थी उनको बढ़ावा देने के लिए जो समय समय पर उनके द्वारा मांगे की जा रही थी, उन्होंने भी भारतीय राजनीति की दिशा एवं दशा को परिवर्तित किया। उसी का परिणाम था कि क्षेत्रीय दल अब जो बड़े राजनीतिक दल से दलों के साथ बार्गेनिंग करने की अवस्था में आ रहे थे और उसी बार्गेनिंग का इसी का परिणाम हो रहा था कि दोनों ही तरफ से केंद्र स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी उन दोनों
के मध्य जो तनाव था उसको देख सकते थे। इसी समय पर राज्यों के द्वारा जो नए नए राज्यों की मांग भी निरंतर की जा रही थी। यद्यपि यह जो फिनोमेना है यह स्वतंत्रता के पश्चात से ही बना हुआ था, जहां पर पूर्व में भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग की जा रही थी, वहीं पर समय परिवर्तन के साथ साथ यह मांग आर्थिक विकास के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण कि राज्य बड़ा है तो वहां पर विकास उतना संभव नहीं हो पाता है, उसको लेकर जो एक व्यवस्था के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा निरंतर मांग की जा रही थी, उसने भी राज्यों की राजनीति को और हम कहें मुखर कर दिया था। क्योंकि प्रथम 2 दशकों में राज्यों की राजनीति बहुत मुखर नहीं रही थी, लेकिन जैसे जैसे गठबंधन का दौर चला और 90 या 2000 तक आते आते राज्यों की राजनीति एक प्रमुख स्थान लेती जा रही थी, और उसी का परिणाम था कि केंद्र और राज्यों के जो मध्य संबंध थे उसमें गत्यात्मकता बनी हुई थी। लेकिन उसी के साथ साथ इसी समय में हमें भारत में राजनीतिक दलों में अनुशासन का अभाव भी एक स्पष्ट रूप से देखने को मिला। उसी का परिणाम था कि राजनीतिक दल के सदस्य और या उनके नेतृत्व के द्वारा चुनाव से पूर्व या चुनाव के पश्चात अपने दल के सदस्यों को या जो निर्वाचित होकर सदस्य आए थे उनको अनुशासन में बांधे रखना, या उन सदस्यों के द्वारा जो दूसरे दलों के साथ निष्ठा निभाना चाह रहे थे उनको बांध कर रखना, या वो अपनी निष्ठा क्यों छोड़ रहे थे, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ था, जिससे कि एक अस्थिरता का दौर चल रहा था। यही वह समय है जब भारत में 2 अलायंसेस प्रमुख रूप से उभर कर सामने आते हैं। एक अलायंस है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको जो लीड किया जा रहा था वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, और जो दूसरा अलायंस था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसको कांग्रेस के द्वारा लीड किया जा रहा था। अर्थात इन दोनों ही अलायंस के द्वारा केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखते हुए जो सरकारों का गठन किया जा रहा था, जहां जो पहली बार एनडीए के द्वारा केंद्रीय स्तर पर जो सरकार बनाई गई, जहां उसमें 13 सदस्य एक साथ थे, वहीं पर कांग्रेस के द्वारा जब सरकार बनाई जा रही थी तो उसमें 23 सदस्यों का समर्थन उन्हें प्राप्त था। इन दलों का समर्थन जो सरकारें बनी थी, कभी यह समर्थन अंदर से था कि वो सरकार के गठन में शामिल थे, और कभी कभी यह जो समर्थन था वह सरकार के से बाहर रहते हुए भी उन्हें समर्थन दिया जा रहा था। अर्थात वह सरकार को जो माइनॉरिटी में सरकार थी, बाहर से रहते हुए वो संसद में उनका समर्थन करते थे। तो यह दोनों ही प्रकार के समर्थन की जो विशेषता थी या जो प्रवृत्ति थी, इसको भारतीय राजनीति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जो राजनीति इस समय का जो दौर है वह है इसमें अब उन धनाढ्य लोगों का, परिवारों का, वर्ग का महत्व बढ़ता जा रहा था, क्योंकि राजनीति में अब धन की शक्ति महत्वपूर्ण हो चली थी। राजनीतिक दलों के द्वारा, उम्मीदवारों के द्वारा चुनावों में जो धन खर्च किया गया है वह इतना अधिक था कि उसको आम आदमी के द्वारा जो राजनीति में अपनी सहभागिता रखना चाहता है या राजनीति में निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अपनी भागीदारी बनाना चाहता है, उसके लिए यह प्रक्रिया बहुत कठिन होती जा रही थी। यद्यपि भारत में चुनाव आयोग के द्वारा राजनीति में चुनावों के दौरान धन के खर्च को सीमित करने के लिए एक दायरा सीमित कर दिया गया था, कानून बना दिया गया था, लेकिन उसके पश्चात भी जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा उस सीमा का उल्लंघन करते हुए इस धन की शक्ति का प्रयोग किया जाना आरंभ हो चुका था। और इसी का परिणाम था कि जहां पर राजनीति का अपराधीकरण होना शुरू हुआ, वहीं पर अपराधियों का भी राजनीतिकरण आरंभ हो रहा था। अर्थात वह जो विशेषता थी वह भारतीय राजनीति में इस दौर में आरंभ कर चुकी थी। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो बहुत सारे चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं वो इस तरीके की पृष्ठभूमि से आते हैं, जो कि अपराधों में किन्हीं न किन्हीं मामलों में उनकी संलिप्तता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारतीय राजनीति की जो एक विशेषता रही है यहाँ पर है कि व्यक्तित्व
की जो भूमिका है वह बहुत महत्वपूर्ण है। पर्सनैलिटी कल्ट की जब हम बात करते हैं तो वह राज्यों की राजनीति में भी और केंद्र की राजनीति में भी प्रमुख भूमिका के रूप में उभर कर सामने आई, जिसने राजनीति को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। इन संदर्भों में अगर हम राजनीति का विश्लेषण करें तो जो केंद्रीय स्तर की राजनीतिक दल थे उनमें भी जो चुनाव लड़ा जाता था वो राजनीतिक दलों के नेताओं के आधार पर, जो उसका व्यक्तित्व होता था, जो उस पार्टी को लीड करता था, चुनाव में वह दल जब जाता है तो उस व्यक्तित्व को लेकर जाता है, उस नाम को लेकर जाता है। और उसी के साथ साथ जो राज्य में भी चुनाव हो रहे थे उनमें भी कमोवेश यही स्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा रही थी, या हम कहें उसका प्रभाव था कि चुनाव का जीतना या हारना उन्हीं राजनीतिक जो नेतृत्व होता था उसी के ऊपर ही निर्भर करता था। यही वह दौर है जब भारतीय राजनीति में परिवारवाद का या हम कहें वंशवाद का आरंभ हो रहा था। अर्थात जो पार्टियां जिन परिवार के द्वारा या जिस लीडर के द्वारा जिनको गठन किया गया था, अब वह राजनीतिक दल उस परिवार या उस परिवार के सदस्यों या उसके रिश्तेदारों तक वो सीमित होती जा रही थी। अर्थात जो मुख्यमंत्री का पद है या प्रधानमंत्री का पद है उसी दलों तक वो उसी परिवार तक वह सीमित हो रहा था और वह पार्टी उसी परिवार के नाम से जानी जा रही थी। और इस व्यवस्था की अगर हम आज तक की राजनीति की हम विश्लेषण करें तो अभी तक उन दलों में जो परिवारवाद का आरंभ हुआ था उसे आज तक की राजनीति में भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जहां पे चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर जहां पर अगर वह जीत जाती है तो मंत्री पद के बंटवारे तक लेकर उस फेवरिज्म को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है या उस परिवार की भूमिका को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। इसी के साथ यह वह भी समय है जहां पर क्षेत्रीय दलों का महत्व भी बढ़ रहा है राजनीतिक स्तर पर, केंद्र में भी और राज्य स्तर पर। यद्यपि इसका आरंभ 1967 के दौर से आरंभ हो गया था, लेकिन बीच में एक ऐसा समय भी आया कि जब क्षेत्रीय दलों के आपसी टूट के कारण, सत्ता प्राप्ति की अधिक लालसा के कारण और राजनीति के अवसरवादिता के कारण क्षेत्रीय दल जो है वो कम महत्वपूर्ण हो गए थे और कांग्रेस एक प्रमुख पार्टी के रूप में बीच बीच में उभर कर सामने आ रही थी। तो इस समय में दोबारा से क्षेत्रीय दलों के द्वारा, चाहे वह केंद्र में एनडीए के द्वारा सरकार बनाई गई थी या इसमें यूपीए के द्वारा सरकार बनाई गई थी, उनमें दोनों ही सरकारों के दौरान यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि इन क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बनी हुई थी और अपनी भूमिका को वह निरंतर बनाए हुए थे। इसी समय में जो भारत में जो प्रमुख मुद्दे थे वह था कि अर्थव्यवस्था को और अधिक विकास प्रदान करना, कि जिन मुद्दों पर पिछले समय की जो राजनीति थी या चुनाव लड़े जा रहे थे उनका स्थान अब धीरे धीरे विकास की राजनीति ने ले लिया, कि विकास के मुद्दे महत्वपूर्ण हो चले थे, सुशासन महत्वपूर्ण हो चला था। अर्थात जो राजनीतिक दल या जो सरकारें सत्ता में थी वो सुशासन की बात कर रही थी, विकास की बात कर रही थी, वह उनका विश्वास लोगों को निरंतर मिल रहा था और सरकारों का गठन भी इसी आधार पर हो रहा था। इसी का परिणाम है कि जो भारत में इस समय पर भारतीय जो हमारी जीडीपी में जो वृद्धि हुई है वह वृद्धि भी बहुत ही उल्लेखनीय है। पिछले जो हम 2010 से और 19 में जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसमें इस बात को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था 2010 में 90वें स्थान पर थी, वह सरकारों के प्रयासों के फलस्वरूप वह अब 5वें स्थान पर आ चुकी थी। अर्थात 2.94 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के हिसाब से वह अब
5वें स्थान पर स्थान प्राप्त करके विश्व के महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी थी। तो यह परिणाम था कि इन सरकारों के द्वारा जो विकास के मुद्दों पर बल दिया जा रहा था, तो उससे न केवल लोगों का विश्वास बढ़ा, बल्कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो विकास गति थी उसको और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदान की। सरकारों के द्वारा जो ये राजनीति की प्रवृत्तियां रही हैं, उनके द्वारा जो बल दिया जा रहा था, उसमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जहां पर राजनीतिक संस्थाओं का विकेंद्रीकरण किया गया, अर्थात भारत में जो 1993 में 73rd संवैधानिक संशोधन किया गया था, उसने न केवल स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संस्थाओं के गठन में एक रूपता लाई, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही लोगों की राजनीतिक संस्थाओं में सहभागिता नीति निर्माण से लेकर उनके क्रियान्वयन तक तथा उसके मूल्यांकन तक भी सुनिश्चित कर दी थी। और इसी के साथ जो समाज का एक पिछड़ा हुआ वर्ग भारत में था, अभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो महिलाएं जो अभी तक निर्णय निर्माण प्रक्रिया से दूर रही थी, उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करते हुए उन्हें इस संशोधन के माध्यम से उनकी जो थी सीटें सिक्योर कर दी गई थी। तो यह एक प्रमुख इस समय की प्रवृत्ति रही कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक स्तर पर भी और जो संसद के द्वारा इस तरीके के संवैधानिक संशोधन लाए जा सकते थे, उनको भी प्राप्त किया जा रहा था। इसी दिशा में जो भारत में नागरिकों को सशक्त करने के लिए, उन्हें और मजबूत बनाने के लिए जो 2005 में सूचना का अधिकार प्रदान किया गया, इसी के साथ साथ शिक्षा का अधिकार भारत में बच्चों को प्रदान किया गया है। इसी के साथ जो फूड सिक्योरिटी बिल है उसको भारत सरकार लेकर आई है। इसका अर्थ है कि अर्थात जो लक्ष्य, जिन लक्ष्यों को भारतीय संविधान में रखा गया था, सरकारों के द्वारा उनको प्राप्त करने के लिए समय समय पर निरंतर कदम उठाए जा रहे थे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में थे, चाहे वो फूड सिक्योरिटी को लेकर थे, चाहे वो राजनीति को लोकतांत्रिक रूप से और सशक्त करने के लिए थे, या लोगों की सहभागिता को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने से लेकर थे। अर्थात ये सारे कदम थे जो इस दिशा में निरंतर किए जा रहे थे। लगभग 2 दशक के पश्चात, या मैं कहूं 2 दशक से भी अधिक के समय के पश्चात, भारत में 2014 में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो सरकार या जो राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत हासिल करके जिसने सरकार का गठन किया। यद्यपि इस सरकार के द्वारा बहुमत हासिल की गई है अपनी दल के प्रदर्शन के आधार पर इसे अगर राजनीतिक दृष्टि से इसका विश्लेषण किया जाए तो यह भी गठबंधन की ही सरकार है। और यह गठबंधन की सरकार जो चुनाव से पहले जो दल वर्तमान में सत्ता दल के साथ आए थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ आए थे, उन्हें आज भी वह सरकार के साथ बने हुए हैं। अर्थात उन्हें सरकार को समर्थन और सरकार उनको अपने साथ लिए हुए है। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत शासन व्यवस्था को दिखलाता है, या हम कहें भारतीय राजनीति की एक ऐसी उभरती हुई प्रवृत्ति है जो एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। अर्थात सरकार अकेले उस दल जो बहुमत में आया है उसके द्वारा भी बनाई जा सकती है, परंतु जिन दलों ने चुनाव से पूर्व एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उद्देश्यों को साथ लेकर आए थे, वो आज तक सभी दल सरकार के साथ बने हुए हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि सरकार ने उनको अपने साथ बनाए रखा हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। लेकिन इसी के साथ साथ जो राजनीतिक विश्लेषक और जो शोधार्थी हैं या इस तरीके के एकेडमिक फील्ड में जो काम करने वाले विद्वज्जन हैं, उनका मानना है कि भारत दोबारा से एक वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है, कि जहां पर एक ही दल की प्रभुता है और उसी के द्वारा शासन
सत्ता प्राप्त की जा रही है। निश्चित रूप से एक लंबे समय के बाद ऐसी दल के द्वारा सरकार का गठन किया जा रहा है जो अपने बहुमत के आधार पर आई है। जनता ने उसे बहुमत प्रदान किया है और उसे दोबारा भी चुनकर भेजा है। लेकिन जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक और मजबूती होती है या उसे और सशक्त करती है, समृद्ध करती है, वह है मजबूत लोकतंत्र का होना, जिसका कि अभाव भारत में आज महसूस किया जा रहा है। यद्यपि वह गठबंधन सरकारों के दौर में भी रहा था, परंतु आज भी इसको महसूस किया जा सकता है कि जो विरोधी दल है या जो सत्ता दल से बाहर जो दल है, उनमें कोई भी दल ऐसा नहीं है जो सरकार में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मजबूत विरोधी दल के रूप में स्थापित हो सके। क्योंकि जो विरोधी दल है उसका या विपक्ष है, उसका स्थान लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है, संसदीय शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो वाद विवाद होते हैं, जो डिबेट होती हैं, जो मुद्दे लेकर आते हैं, उन पर जो बहस होती है, उन बहस को सार्थकता प्रदान करता है। तो उसके लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक हो जाता है, जिसका कि हमें अभी अभाव दिखलाई देता है। सत्ता दल बहुमत में बहुत लंबे समय के पश्चात है, तो जो बात थी कि परिवर्तनशील हम नीतियों की बात करते हैं, विकास परक नीतियों की बात करते हैं, तो वर्तमान में उन नीतियों को सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है और उनको अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें लागू किया जा रहा है। सरकार जहां विकास के मुद्दों पर निरंतर कार्य कर रही है, विकास गति को तीव्रता प्रदान कर रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है, वहीं पर उसके साथ साथ सुशासन पर भी बल दे रही है। क्योंकि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के लिए, जनता को बेहतर शासन प्रदान करने के लिए सुशासन एक समय की मांग है। और ये भारत के लिए जो कि एक विकासशील व्यवस्था है, उसके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुशासन को व्यवहारिक रूप में प्राप्त किया जाए या उसकी जो विशेषताएं हैं उन्हें लागू किया जाए। तो वर्तमान में सरकार के द्वारा जो इस पर फोकस किया जा रहा है वह है कि सिटीजन फर्स्ट आज प्राथमिकता है सरकार की, कि सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाएं वह नागरिक को केंद्र में रखकर बनाई जानी चाहिए। कि अर्थात जो केंद्र के द्वारा या राज्यों के, तो किसी भी सरकार के द्वारा नीति बनाए, उसका लक्ष्य नागरिकों का अधिक से अधिक विकास हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका अर्थ है कि वहां पर वह ये प्रयास कर रही है कि सरकार और जनता के मध्य जो अंतर है उस अंतर को कम किया जाए और उस अंतर को कम करके वह यह स्पष्ट रूप से किया जाए कि सरकार और जनता और अधिक पास आ सके और जो समस्याएं हैं जनता की उन्हें दूर किया जा सके। इसी का परिणाम है सरकार के द्वारा जो योजनाएं आरंभ की जा रही हैं, चाहे वह जनधन योजना के नाम पर है या वह लोगों को सब्सिडी प्रदान करना है, या इसी के साथ साथ जो लोगों के बैंक अकाउंट खुले हैं, उज्ज्वला योजना के तहत जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वह जनता तक सुनिश्चित की जाएं। इसी का परिणाम है कि जो सरकार के द्वारा डिजिटलाइजेशन का कार्यक्रम आरंभ किया गया है, उसी के परिणाम स्वरूप अब उन योजनाओं को या सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं या सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनको जनता तक पहुंचाया जा सके भली प्रकार से, और जनता उनसे लाभान्वित हो सके, लाभार्थी तक उसका जो सरकार की सेवाओं का फल है वह वहां तक पहुंच सके। और स्पष्ट रूप से जब आज हम न केवल पूरा विश्व आज एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी हो गया है, स्वयं को बचाए रखने के लिए, दूसरों को बचाए रखने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, तो जो ये डिजिटलाइजेशन के कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं, मोबाइल ऐप है या वो आधार कार्ड के माध्यम से उसका प्रयोग करना है, डिजी लॉकर के माध्यम से है, बैंक अकाउंट के माध्यम से है, जहां पर अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित रहते हुए इन माध्यमों से सरकारी सेवाओं का नागरिकों के द्वारा लाभ उठाया जा सकता है और उनको बेहतर तरीके से सरकार के द्वारा अपने नागरिकों तक पहुंचाया जा सकता है। तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा
जो कदम उठाए जा रहे हैं या पिछली सरकारों के द्वारा भी उठाए गए हैं, उसने भारत को वैश्विक स्तर पर भी अब एक मजबूती प्रदान की है। क्योंकि जब हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की उभरती हुई प्रवृत्तियों की बात करते हैं, तो उसे वह हम आंतरिक राजनीति में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हमारी, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के में भी भारत की क्या विशेषता उभर कर सामने आ रही है। तो जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया, लेकिन धीरे धीरे अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया, और उसी के साथ जैसे जैसे वैश्विक स्तर पर एलपीजी का आरंभ हुआ, उनको भारत में लागू करते हुए, और वर्तमान समय में भी जब भारत में जो एक सॉफ्ट पावर के रूप में जाना जाता है, अब भारत के द्वारा वो भी निर्णय लिए जा रहे हैं जो कि भारत को, जो विदेश नीति के विचारक हैं, विश्लेषणकर्ता हैं, विद्वान हैं, वो कहते हैं कि भारत धीरे धीरे अब एक हार्ड कोर पावर की तरफ बढ़ रहा है। तो यह एक समय की मांग है कि जिससे भारत वैश्विक पटल पर अपना एक स्थान बनाए रख सके, अपने देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रख सके, और इसी के साथ जो नेतृत्व वर्तमान में है वह देश के मध्य इस तरीके की भावना को विकसित कर सके या इस तरीके का नेतृत्व प्रदान कर सके जहां पर कि केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर कार्य करें। तो पिछले कुछ महीनों के अनुभव के दौरान, या हम कहें इस पर बात पिछले जो सरकार है उसके दौरान हो लगातार की जाती रही है कि सहयोगी संघवाद को अपनाना है, इसके आधार पर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। तो वर्तमान में जब वैश्विक महामारी का दौर है जहां पर एक साथ बैठकर कार्य नहीं किया जा सकता और इस समस्या से निपटना है, तो भारत में जो सहयोगी संघवाद का एक मॉडल है वो दोबारा उभर कर सामने आ रहा है, जहां पर केंद्र एवं राज्य दोनों के जो नेतृत्व है वो एक साथ मिलकर इससे निपटने के लिए स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। केंद्र के द्वारा राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, और राज्यों को, सरकार को जो भी उन्हें सहायता प्रदान करनी है वो सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। यद्यपि कुछ छोटे मुद्दों पर असहमति बन सकती है, लेकिन उस असहमति से भी ऊपर आकर अब केंद्र एवं राज्य सरकारें एक साथ मिलते हुए भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान कर रही हैं, जो भारतीय राजनीति की एक नई प्रवृत्ति है और एक नई प्रवृत्ति की ओर लेकर जाती है, जहां पर कि भारत में को आंतरिक रूप से लोगों का विकास करना है, उनको अधिक से अधिक सहायता प्रदान करना है, सुविधाएं प्रदान करना है, उनका राजनीतिक विकास करना है, आर्थिक विकास करना है। उसी के साथ साथ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक ऐसा मजबूत नेतृत्व का प्रदर्शन करना है जहां पर कि भारत अपनी मजबूती के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए रख सके। पिछले कुछ महीनों के द्वारा इसको और अच्छे तरीके से जो पिछले अनुभव है उनके आधार पर महसूस किया जा सकता है कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है या जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, मल्टीलैटरल रिलेशंस हैं, उनके आधार पर भी वह अपनी भूमिका को और महत्वपूर्ण साबित करता जा रहा है, और उसी के साथ साथ अपनी जो उसकी पॉलिटिक्स है, उसका जो नेतृत्व है, वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसे और प्रमुख या और मुखर बना रहा है। इन्हीं की जो प्रमुख जो प्रवृत्तियां स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक उभर कर आई हैं, मैंने उनको विभिन्न कार्यकाल के आधार पर, विभिन्न फेजों के आधार पर उन्हें विश्लेषण करने का प्रयास किया है कि किस किस तरीके की प्रवृत्तियां भारतीय राजनीति में उभरती रही हैं और आज वो किस स्वरूप में हमारे समक्ष हैं, और भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस दिशा और किस दिशा की तरफ बढ़ रही है, क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमारी रही हैं, और कौन कौन सी अभी ऐसी हमारे समक्ष भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां हैं जिन्हें अभी हमें पूरा करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और पुनः जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, हम मेरे वरिष्ठ साथी
प्रोफेसर एम सेमवाल जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के फेसबुक लाइव पेज से जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। मैं इसी के साथ विश्वविद्यालय की जो माननीय कुलपति हैं प्रोफेसर और अन्नपूर्णा नोटियाल जी, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस तरीके के जो कार्यक्रम है, जो उनका अपना विभाग है राजनीति विज्ञान विभाग, उसमें निरंतर चल रहे हैं, जो विषय को समृद्ध बना रहे हैं, गत्यात्मकता बनी हुई है। ऐसे समय पे जब हम फेस टू फेस नहीं मिल सकते हैं, तो इस तरीके के आभासीय जो प्लेटफॉर्म हमारे सामने हैं, उनका लाभ उठाकर जो प्रोफेसर सेमवाल जी ये अवसर प्रदान कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। विभाग के सभी जो वरिष्ठ आचार्य गण हैं, मैं उनको भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके विभाग से आज मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। मैं तो उनको हमेशा से उनसे लाभान्वित होती रही हूँ और आगे आने वाले समय भी जो राजनीति विज्ञान विभाग के आचार्यगण हैं, मैं उनसे इसी प्रकार से लाभान्वित होती रहूंगी। और इसी के साथ दोबारा से मैं प्रोफेसर सेमवाल जी को धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बच्चों को दी है। एक दो सवाल इसमें आए हैं। एक नियति रावत हैं, उन्होंने जी जी एक सवाल पूछा है मैडम। हाँ। उनका जो स्क्रीन पे भी मैंने डाला है, वो पूछ रही हैं कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसका जो भविष्य है और उसकी जो चुनौतियां हैं, खास करके जो केंद्रीकरण की जो प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, ये उनका मुख्य सवाल है नीति रावत का। हाँ। नीति रावत जी, बहुत आपका रिलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिस व्यवस्था की तरफ हम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात से ही यह परिवर्तनशील रहा है। जहां पर प्रारंभ में यह है एकीकृत संघात्मक व्यवस्था के रूप में था, तो फिर हम देखते हैं कि सहयोगी संघवाद के रूप में आया, फिर यह सौदेबाजी के एक उपागम के रूप में हमारे सामने आया, और वर्तमान में फिर हम जो एक सहयोगी संघवाद है उसकी तरह बढ़ रहे हैं। तो ये निर्भर करता है सरकारों के द्वारा कि किस तरह की व्यवस्था को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जो वर्तमान में देश को नेतृत्व दे रहे हैं, उन्होंने जब सरकार में आने के पश्चात ही अगर हम उनके विभिन्न उद्बोधनों का विश्लेषण करें निष्पक्ष रूप से राजनीति विज्ञान के शोधार्थी होने के नाते, तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने प्रारंभ से ही सहयोगी संघवाद की भावना पर बल दिया है कि इसको व्यवहार में लाया जाएगा, और उस पर उन्होंने कार्य भी सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। और अब विशेषकर कोविड-19 के दौरान हम इस चीज को और महत्वपूर्ण दृष्टि से विश्लेषित कर सकते हैं कि केंद्र और राज्य, चाहे वह किसी भी दल के हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, वह एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, राजनीति को भुलाए हुए हैं, और वो एक साथ मिले हुए हैं। और जहां पर उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, वह राजनीति को अलग छोड़कर राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है। तो हम इसी के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं या इनका विश्लेषण कर सकते हैं कि निश्चित रूप से जो आगे आने वाला समय होगा वह भारतीय संघात्मक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होगा, और सहयोगी संघवाद की जो भावना है वह और आगे बलवती होती रहेगी, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मिलकर विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मैडम, एक नियति रावत का एक और सवाल भी है जिसमें वो पूछती है कि बिल्कुल। भारतीय लोकतंत्र में खास करके जो हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है, उसमें जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, उस पे उनका सवाल फोकस किया है उन्होंने, नियति रावत ने। बिल्कुल, ये भी आज के समय में जब उन्होंने सवाल पूछा है, बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि, और अभी हमने अनुभव भी किया है, पिछले दो महीने हुए हैं उसका अनुभव, और जब से ये गठबंधन की राजनीति चली है, ये तब से दौर शुरू हुआ है। तो रावत जी, ये जो प्रश्न है आपका, बिल्कुल हम कहें कि तब से अब तक निरंतर बना हुआ है। तो जो मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि ये जो अवसरवादिता की राजनीति है, ये जो विचारधाराहीन राजनीति है, और ये जो
दल बदल की राजनीति है, ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को कमजोर करती है। तो अगर हमें भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है, स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, तो इस प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। और इस प्रवृत्ति को छोड़ने के बाद ही हम अपनी जो वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था है उसको समृद्ध बना सकेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे। क्योंकि भारत में, मैं जैसे मैंने अभी भी बताया कि हमारे यहाँ पे दल बदल विधेयक कानून है, लेकिन उसके पश्चात भी ऐसे रास्ते ढूंढ लिए जाते हैं कि सरकारें बना ली जाती हैं। और विशेषकर जो एक नई प्रवृत्ति शुरू हुई है वो है निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर। तो आज के समय में तो ये जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं क्षेत्रीय दलों के साथ साथ, क्योंकि इनके ऊपर सरकारों का गठन और संचालन तक टिका हुआ है। तो निश्चित रूप से ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की समस्या है या प्रवृत्ति है, ये भारतीय ये किसी भी प्रकार की राजनीति के लिए एक अच्छी विशेषता नहीं है, ये सकारात्मक विशेषता नहीं है। इस नकारात्मक प्रवृत्ति को हमारी राजनीतिक प्रक्रिया से दूर हटाया जाना चाहिए और विचारधाराओं पर जो आधारित जो राजनीति है उसको स्वीकार करते हुए सभी दलों के द्वारा, निर्दलीय लोगों के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा भी उसको स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। मैडम, बहुत अच्छा आपने इसका उत्तर दिया है। मुझे लगता है कि नियति रावत अपने पूछे गए प्रश्न से संतुष्ट हो गए होंगे। एक आरुषि ध्यानी का भी एक सवाल है। पहले आरुषि ध्यानी पूछती हैं हाँ कि सर। जो इलेक्शन है, मनी पावर का जो रोल है, जो खास करके जो बड़ी पार्टियां हैं और उनमें जो जब चुनाव होता है उस चुनाव में जो धनबल का वो प्रयोग करते हैं, उसके कारण जो छोटी पार्टियां हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन पे क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल आरुषि जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और मैंने जब उभरती हुई प्रवृत्ति में एक बिंदु ये कहा था कि जो भारत में अब राजनीति में धन का या धन की शक्ति का महत्व बढ़ रहा है, और ये इसमें भी यद्यपि हमारे पास कानूनी प्रावधान है, लेकिन उसके पश्चात भी राजनीतिक दल और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वह उससे अलग जाकर जो धन का खर्च कर रहे हैं वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध जाता है। और विशेषकर स्थानीय स्तर पर कि जहां पर जिन लोगों को आगे आने के लिए राजनीतिक संस्थाओं में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये वो पीढ़ियां हैं जो पहली पीढ़ी के रूप में राजनीति में प्रवेश कर रही हैं। अगर हम राज्य स्तर की बात करें और या केंद्र स्तर की बात करें तो वहां पर तो वो परिवार हैं जो राजनीति में लंबे समय से हैं या महत्वपूर्ण पदों पर हैं या राजनीति के अभिजात वर्ग से होते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर तो वो जो फर्स्ट जनरेशन होती है उनके लिए तो उस सीमा तक, जो मिनिमम सीमा तक रखी है, उस तक पहुंचना भी कठिन कार्य होता है। तो इसमें यही एक प्रयास हो सकता है कि जो कानून बना हुआ है जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा जो एक निर्धारित सीमा रखी गई है, उसका चुनाव आयोग के द्वारा और सरकार के द्वारा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसको लागू किया जाए। और अगर ये बेहतर तरीके से लागू होगा तो जो और सामान्य लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, संस्थाओं में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहते हैं, जिनके पास धन नहीं है उतना खर्च करने के लिए, अपने क्वालिटी के आधार पर आना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। और भारत में जो राजनीति है उससे जो हम कहते हैं कि फ्री होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, निष्पक्ष हो और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जहां पर सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर हो, धन की बाधा कोई ना रहे, ब्लैक मनी का प्रयोग ना किया जाए और बहुत ही फ्री इलेक्शंस होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक लास्ट सवाल मैं लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल सर। उमराव सिंह दानू जी पूछ रहे हैं कि जो भारतीय राजनीति है उसमें जो विधायिका है उसमें जो गिरावट आ रही है, हम बार बार देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के भीतर या जो हमारे विधानसभाएं हैं उनके भीतर जो हमारे माननीय सदस्य होते हैं उनमें लगातार उनके व्यवहार में, उनके संसदीय व्यवहार में लगातार गिरावट आ रही है। वो शायद ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल उमराव जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही सारगर्भित हो जाता है। जैसे कि जब से भारत में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ है तो तब से इस
जो ये विशेषता है, डिक्लाइन इन लेजिस्लेचर जो प्रोसेस है या जो उसकी गरिमा है, उसमें हमें हरास दिखलाई देता है। उसका कारण जहां पर जो राजनीति है वो अवसरवादिता पर आधारित हो गई है, और जो दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण है वह है मजबूत विपक्ष का ना होना। वर्तमान में भी इस प्रवृत्ति को विभिन्न राज्यों में और केंद्र में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और क्योंकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम शोधार्थी हैं, हम उनका विभिन्न जो सेशन हुए हैं उनके आधार पर जब मैं विश्लेषण करती हूँ तो या और भी जो विश्लेषक हैं वो निष्कर्ष निकालते हैं, वो निश्चित रूप से इस चीज को स्वीकार करते हैं कि मजबूत विपक्ष न होने के कारण जो डिबेट होती है पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, उनका जो एक स्थान होता है वो कम हो रहा है। आप देखेंगे उपस्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो लोग चुनकर आते हैं उनकी संख्या कम होती है। जिन लोगों को नॉमिनेट करके जो अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल होते हैं, उनको जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, उनकी भी उपस्थिति बहुत नगण्य होती है। और जो उपस्थिति है उसको देखकर और उसमें जो अब उन मुद्दों पर जो लाए जाते हैं सरकार की तरफ से, जो विधेयक लाए जाते हैं, उन विधेयक पर जो बहस होनी है वो सारगर्भित नहीं हो पाती। ना तो मजबूत विपक्ष का होना, ना उस प्रक्रिया में जो एमपी चुनकर जाते हैं, माननीय हमारे सदस्य होते हैं, उनके द्वारा रुचि लेना, विषय को गंभीरता को से ना लेना, समय के अभाव के कारण, और कभी कभी पर एक समय या एक मुद्दा इतना समय ले लेता है कि उसके कारण जो पूरा सेशन है वो कुछ मुद्दों में निकल जाता है, और जो जनता के महत्वपूर्ण इशू होते हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं, या वो बहुत जल्दी पास होकर, अगर सरकार बहुमत में है तो वो पास हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये डिक्लाइन है। लेकिन जैसे जैसे सरकारें बहुमत की आ रही हैं और विपक्ष अपनी भूमिका केवल विपक्ष की ना निभाकर एक सक्रिय प्रहरी के रूप में खड़ा नजर आएगा, तो सरकारों को तो निश्चित रूप से जवाब देना ही होगा। हमारी व्यवस्थाओं की गरिमा भी, जिसकी जो उद्देश्य है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, जिनकी हम कहीं सपना लेकर चले थे, उसको भी साकार रूप दिया जा सकेगा। बहुत अच्छा मैडम, आपने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण की है। उमराव साहब दानू जी का भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पे सामान्यतः पार्लियामेंट के भीतर जब हम देखते हैं या विधानसभाओं के भीतर देखते हैं, विपक्ष को भी एक निश्चित भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। और जो ये इनके व्यवहार में जो ह्रास हो रहा है, उसके पीछे ये कारण है कि उम्मीदवारों का जब चयन किया जाता है, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब वो उनका चयन करती हैं, तो थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि अगर हमारी जो आवाम है, हमारे जो लोग हैं, जब वो अवेयर होंगे पॉलिटिकली, उनमें अवेयरनेस आएगी, राजनीतिक रूप से जागरूक होंगे, अच्छे लोगों का अगर हम चुन करके भेजेंगे पार्लियामेंट के भीतर, तो निश्चित रूप से उनकी जो संसदीय व्यवहार है उसमें भी अंतर आएगा। दूसरी बात यह है कि संसद के भीतर एक BPST है, ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री ट्रेनिंग स्टडी सेंटर करके है, उसके द्वारा इनका प्रशिक्षण किया जाता है, जो हमारे माननीय सदस्य होते हैं। तो ये सामान्यतः ये भी देखा जाता है कि ये लोग उतना उसमें समय नहीं दे पाते हैं। सीखने की जो प्रवृत्ति है और एक दूसरे को सुनने का जो पेशेंस है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तीसरी बात ये आती है कि हमारे जो माननीय सदस्य होते हैं वो हाउस के भीतर जब वो लाइव टेलीकास्ट होता है पार्लियामेंट हाउस में, चाहे वो क्वेश्चन आवर हो, तो उनको लगता है कि मैं जितना गुस्सा करूंगा, जितना रोष दिखाऊंगा, तो मेरे क्षेत्रीय जो मेरी जनता है वो उसको मेरे को श्रेय जाएगा कि मैंने पार्लियामेंट में हल्ला किया था। लेकिन धीरे धीरे इसका निश्चित रूप से जनता भी देख रही है कि जो पार्लियामेंट के जो सवाल हैं, पार्लियामेंट का जो समय है, एक एक सेकंड हज़ारों रुपये का होता है, एक एक हमारे जो टैक्स पेयर का जो पैसा है, तो उसका जब लोग, जितनी जनता अवेयर होगी, उतने ही मैं समझता हूँ कि हमारे जो सदस्य हैं वो भी अच्छे चुन के जाएंगे और राजनीति साफ सुथरी होगी। आपने बहुत सरल शब्दों में बिल्कुल सही समसामयिक विषय पे इस अपनी बात को रखा मैडम। और आपका ये जो पूरा जो व्याख्यान है हमारे छात्रों के लिए, हमारे जो तमाम जो फैकल्टी मेंबर्स और हमारे अन्य विश्वविद्यालयों के जो छात्र और फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हैं, निश्चित रूप से
लाभान्वित हुई हैं, और आपने बहुत ही अत्यंत सरलता युक्त भारतीय राजनीति की जो उभरती जो प्रवृत्तियां हैं का आपने विद्वतापूर्ण रूप से जो उजागर किया। आपने गठबंधन की राजनीति, अवसरवाद की राजनीति और तमाम पहलुओं पे सबका ध्यान आकृष्ट किया। और ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी भी कर रहे होंगे उनके लिए भी ये वो व्याख्यान बहुत लाभप्रद रहा। आपने अपना समय दिया। मैं अपने विश्वविद्यालय की ओर से, अपने विभाग की ओर से आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।